Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So we have started studying the electricity chapter, all right. And हमने अभी तक जो है last lecture के अंदर हम लोगों ने electric current and electric potential difference को study किया था, right. सो द थिंग बिहाइंड इज कि हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए, बिकॉज एक्चुअली में तो रीजन वही है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का रीजन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर ये डिफरेंस नहीं होता है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे, राइट. तो बिहाइंड दिस वी हैव नो द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. एंड आज जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस टुडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, right. And we will be discussing some of the general things like how electric current flows inside a wire, or how electrons flow inside a wire, right. ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड द नॉलेज वी गेन और द नॉलेज वी try to gain is for the Olympiads as well as for your school examination. So you can benefit in both the examination with this video or with this you can say with this channel. Alright, so what we deal with the school examinations and Olympiads. We cover up all the Olympiads, alright, and this team will be helping you in achieving all the goals related to your study, right. So we will be helping you in that. If you want any DPP or study material, you can definitely access them through the Telegram channel. All you have to do is to go on Telegram app, write the code TTP010 for class 10, alright, and then you can access all the DPPs and study material available there. So it is very much beneficial for you. Go over there, access it, try that out, alright. जितना हो सके उतना practice कीजिए. It would be very much helpful to you. Alright, and the next important thing I wanted to tell you is that we have prepared some packages for you, for those students who want to crack any competitive examinations or who want to crack the school examination properly, right. So if they want, we have prepared some packages for them. Then to access those packages or to see the structure or the benefits of for those packages, you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. Over there you will be seeing such type of packages, all right. Many packages are there for every classes, so you can definitely go over there, check out the packages. If you think you like this or this will help you, you can definitely buy them. What are the features inside the package is that this is the whole package. This is just an example because this is of class 6, right. So all right. See, the foundation and the Olympiad, alright, this is the name of the package, and this shows that this cover up the foundation level as well as the you can say the Olympiad level. So from the very basic, you are getting knowledge from the very basic to up to a level of the Olympiad, right. So it will be very much beneficial, and we have prepared some structured, you can say structured on in an organized study material, right. You can say see, the comprehensive study material is the #1 feature. That means you are going to get the study material which is very much structured, very much organized, and properly number of questions or the examples you can learn through, right. So all such things are included, and obviously the previous year question papers also included in that book, right. The board pattern on the Olympiads level, all right, NTSC and all. So we have covered up all the things you needed in a study package, and that's we have provided to you, right. Recorded in live classes is important so that you can go back on any video or any topic, you can re-watch it, you can relearn from that. So it would be beneficial for you in the long term, right. Homework submission is a feature because many students do not even do their homework. So how do a teacher knows that? That's why we have prepared that you have to submit your homework through the Google Classrooms, alright, and it is very much beneficial for you all, so that it has to be done, right. You have to do the homework within a limited time, or the teachers house tells you, alright, and this is the important feature for you all. Now the next is bi-weekly quizzes. This is important because you do know that just studying is not going to make any difference. You have to test yourself regularly, right, and for that you have to take test, and that's why we have prepared the bi-weekly quizzes. That means in 1 week you are going to test it twice, right. So it would be very much beneficial because that's why you will only study.
Now the last one is periodic test papers. Periodic test papers will give you the taste of the final examination or the Olympiad. So you can say all the questions and all the pattern, how they are coming, the level of the questions, the number of the questions, the time management, right? All such things will be cleared if you give this periodic test papers. So these are very much helpful package for you all. The features inside it are very much helpful, very much important for you all, so that you do study regularly just for the sake of the package, right? So if you want to buy such package, if you want to crack any goal of yours about the competitive exam or the school examinations, if you really want to study hard, then you should go for this package. All right, not this particular package, but the package for the class 10, right? So you have to click on buy now. If you want to buy now, then you will be forwarded on the price details page. Over there you can see the cost is 9,000, but if you write here the code CY live, LIVE, all right, CY live is the code for you all, so that you will be getting 30% discount. That means 2,700 will be deducted from the total amount, whatever that amount is. All right, whatever that amount is, you will be getting 30% discount. All right, that means now this cost, this package will become of 6,300. So this is the benefit for you all. You can definitely get the benefit of 30% discount using this code, and you can definitely join the test series too if you want that. If you really want that you don't need such packages, you don't need such material and all, but you want to test yourself, you can definitely go for the test series. And over there on the test series package, you can definitely write this code CY live. Over there you will be getting 30% discount too. So it is so much beneficial for you all if you want to test yourself, if you want to study hard, if you want to crack any examination. These things are very important for you. All right, now what you have to do next is to click on buy package. Then you will be forwarded on all the options you can choose to pay from, right? If you have any query regarding what are the packages, how you are going to benefit from them, you are definitely click on this number. All right, you can definitely say your query, or definitely get your queries resolved on this number. All right, so this was the beneficial thing I wanted to tell to everyone, because we all know that we are so much directionless towards a particular you can say the examination. All right, हमको पता नहीं होता कौन सी बुक्स पढ़े, क्या बुक्स पढ़े, like इतनी सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. So there is so much variety of the study material, and you want to you really want to have a very much directed, so that you are not very much directionless from the starting of the class, right? So you should go for it, you should try it. Definitely it will help you in the long run. All right, now let's start the chapter. That is, we are going to study the electric current continuously. All right, we are going to study electric current in the this lecture, that is the lecture 6, right? And definitely now just take out your books, take out your copies. You have to promise yourself you will be watching the whole lecture and you will be making the proper notes. All right, and the thing is, the next is important and you have to revise it daily, because अगर आप अभी से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन. आपको फाइनल में क्रैम नहीं करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो अभी से पढ़ना शुरू करेगा और वो रिवाइज करना शुरू करेगा, राइट? तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. नाउ लेट्स मूव ऑन. Let's start the chapter. The direction of the electric current we were trying to learn, right? तो हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर हाई पोटेंशियल पे होती है, दैट मीन्स अगर पॉजिटिवली चार्ज होती है, और राइट, और एक बॉडी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, तो दैट मीन्स इट इज़ एट लोअर पोटेंशियल, राइट? तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फ्रॉम हाई टू लो, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, राइट? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस इज द रीजन बिहाइंड द फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, नाउ यू कैन से दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, राइट? दैट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस. इलेक्ट्रॉन्स वहीं से जाएंगे, फ्लो करेंगे, राइट? लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है. दैट मीन्स वो जाता है फ्रॉम positive, that is from high potential to the lower one, from negative to negative, right? तो the reason behind this is just that कि भाई जो electrons होते हैं वो lower potential से
हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं, और ये फ्लो तब स्टॉप हो जाता है जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाता है तो दैट मीन्स उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। ऑलराइट, जैसे आप बोलेंगे लेट्स से कि भाई एक वायर है, कनेक्टेड नहीं है, वो सिंपली रखा हुआ है एक कंडक्टर, लेट्स से एक कॉपर वायर, ठीक है, सिर्फ रखा हुआ है नॉर्मली, तो उसके अंदर कोई करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है उस वक्त जब वो सिर्फ रखा हुआ है नॉर्मली, ठीक है, जस्ट अ पीस ऑफ वायर एंड नथिंग एल्स। तो ऐसा क्यों कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है? बिकॉज वहाँ पर उसके दोनों एंड्स पे, जो वायर है उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, कोई भी ऐसा कोई डिफरेंस, स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है। दैट्स वाई वहाँ करंट फ्लो नहीं होता। बट अगर हम उन दोनों वायर मतलब उस वायर के जो दो एंड्स हैं, अगर हम उसको किसी बैटरी से ज्वाइन कर दे, लेट्स से स्मॉल एक सेल जो होता है नॉर्मल सेल, अगर हम उसी के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देंगे ना तो उसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज क्यों? क्योंकि अब उसके दो एंड्स पे, कंडक्टर के दोनों एंड्स पे अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया है। अब वो 0 नहीं है ना, अब वो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। एक एंड हाई पोटेंशियल पे है, एक एंड लो पोटेंशियल पे है, सो द current will continue to flow, right? So the reason behind the flowing of current is the electric potential difference, right? Now you can see the direction of electric current. The conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or battery to the negative terminal through the circuit. तो इसका मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल कर जाएगा इन दी नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, टू द नेगेटिव दैट इज लो पोटेंशियल। सो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, राइट? अब आप देखेंगे ये एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है। कन्वेंशनल डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? यू कैन डेफिनेटली नो कि भाई जब ये इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया गया, जब सब लोगों को पता चला दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट और दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, ऑलराइट, उस वक्त पर जो सबको ये पता था दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, बट उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ठीक है। तो सब लोगों ने यही माना दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। सो दे थॉट अबाउट दैट एंड दे जस्ट नो दैट कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, एंड पॉजिटिव चार्जेस विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव, डेफिनेट सी बात है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। ऑलराइट, यू कैन सी दैट कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली सी दैट। नाउ देखेंगे यहाँ पे कि लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, ऑलराइट, एंड दिस इज द वायर। अब आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बातें करते, ठीक है, अगर हम जैसे पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोलते तो क्या होता? चार्जेस हमेशा पॉजिटिव से निकलते बिकॉज दे आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, सो दे मूव अवे फ्रॉम दिस टर्मिनल, ठीक है। तो वो निकल कर बाहर जाते और अगेन वो इस नेगेटिव में चले जाता है, बिकॉज वी नो कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो पॉजिटिव इधर की तरफ आएगा, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो इसका मतलब वो नेगेटिव से रिपेल करेंगे, उससे दूर भागेंगे, तो वी कैन से कि दिस इज द करंट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से बाहर निकलते हैं और पॉजिटिव में चले जाते हैं। सो द रीजन बिहाइंड दिस इज कि भाई जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकलना शुरू होते हैं, जैसे ही हमने कनेक्ट किया, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही, ठीक है, और सारे के सारे पॉजिटिव में चले जाते हैं। तो दिस इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उस वक्त तक जब इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तब नोन नहीं थे, तो सब लोगों ने यही माना कि भाई पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। पर जब इलेक्ट्रॉन की बातें आई, जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया, जब सब लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला, उसका नेचर के बारे में पता चला, सो तब उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, पॉजिटिव का तो नहीं, चार्जेस का फ्लो नहीं है, बट इट इज दी फ्लो ऑफ दी नेगेटिव चार्जेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अपोजिट जैसे अगर करंट जाता है ईस्ट टू वेस्ट, ऑलराइट, लेट्स से करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव
करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, बट देन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द positive one. All right, so that's how we are going to decide the direction of the current inside any electric circuit. All right, now let's see किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है. मीन्स आप बोलते हैं, ठीक है, जैसे लेट्स से दिस इज द वायर. ऑलराइट, दिस इज द वायर एंड ये सिंपल एक वायर का टुकड़ा है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैम कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता. ऑलराइट, लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, वो मूव करते रहते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बिकॉज वी नो कि भाई कंडक्टर एक कंडक्टर क्यों है, बिकॉज उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूमते रहते हैं. राइट, सो द थिंग इज अगर वो उसके अंदर मूव करते रहते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर भी करंट होना चाहिए. राइट, तो दे शुड बी करंट, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मूव करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ही हम करंट कहते हैं. तो देयर शुड बी अ करंट, बट यहाँ पे करंट नहीं होता बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी रैंडमली बिना किसी फोर्स के मूव कर रहे हैं, वो अपने मन से मूव कर रहे हैं. बट वी नो दैट कि भाई जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को फोर्सफुली लेकर जा रहे हैं. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ना, हम फोर्सफुली किसी चार्ज को लेकर आते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर. राइट, सो दिस इज द रीजन. इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव हैं, लेट्स ड्रॉ दी मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ द वायर. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सिलेंड्रिकल वायर है और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई यहाँ मूव कर रहा है, कोई यहाँ मूव कर रहा है, कोई ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, कोई नीचे मूव कर रहा है. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. ऑलराइट, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन कैसे क्या, मतलब किधर जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. सो दे आर मूविंग रैंडमली इनसाइड द वायर. ऑलराइट, सो इस वक्त तक ये मूव तो कर रहे हैं बट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन देम, दे मूविंग जस्ट बाय देमसेल्व्स. ऑलराइट, एंड दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, मूव करते करते कोलाइड करते हैं, दैट्स इट. ठीक है, इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अगर धक्का दे दें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाएं, तो दैट वुड बी द फ्लो ऑफ द करंट. ऑलराइट, दैट वुड बी द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से हमें करंट फील होगा. Right, you can see here electric current is the flow of electrons in a metal wire or conductor when a cell or battery is connected across its end. अगर मैं इस वायर के अक्रॉस, ये जो दोनों एंड्स हैं, इनको अगर मैं किसी तरह ज्वाइन कर दूं एक बैटरी से, ऑलराइट, अगर इस तरीके से मैं किसी बैटरी से इसको ज्वाइन कर दूं, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन. अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तब जरूर इसके अंदर करंट फ्लो होगा. बट इस दिस केस जब कोई बैटरी नहीं लगी हुई है तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली कहीं भी मूव कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इनके अंदर अभी कोई करंट नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे अपने मन से मूव कर रहे हैं. देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट, एंड देयर इज नो फोर्स दे आर ओवरकमिंग विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, नाउ यू कैन सी that a metal wire has plenty of free electrons in it. बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं एक नॉर्मल वायर के अंदर, जिसको हमने अभी सेल से कनेक्ट नहीं किया है. ठीक है, हर एक मेटल के अंदर, यू कैन से हर एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो रेगुलरली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर रहे हैं. ऑलराइट, now next we can talk about when the metal wire has not been connected to a source of electricity like a cell or a battery. ठीक है, then the electrons present in it move at a random in all direction between the atoms of the metal wire. जब हम इनको नहीं कनेक्ट करते हैं किसी भी सेल, किसी भी बैटरी से, जब हम इसे कनेक्ट नहीं करते हैं उस वक्त तक इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, बिकॉज देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव टू मूव, बिकॉज इसके अंदर जो भी कोलिजन हो रहा है, बिकॉज दे आर फ्री, दे कैन मूव, so they will be moving, right? So किसी भी random direction में they are moving, and this does not constitute a current. All right, this does not constitute any current. For current you need to know something. Now let's say कि भाई क्या ऐसा होता है कि करंट फ्लो करता है. All right, you can say when a source of electricity like a cell
or a battery is connected between the ends of the metal wire, then the electric force acts on the electrons present in the wire. That means एक electric force वहां पर आ जाता है जब कभी भी एक वायर को कनेक्ट किया जाता है. ऑलराइट, दिस इज द वायर, दिस इज द मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ द वायर. मैंने इसे बहुत बड़ा बना दिया है. ऑलराइट, अब हमने क्या किया, अब जब मैं वो कंडीशन अब आपको बता रही हूँ जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से. ठीक है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा. ऑलराइट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, सारे के सारे रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, इन सबको फोर्स करेगा एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए. ठीक है, जब ये सभी के सभी अलाइन हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल लीनियरली अलाइन हो जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. ऑलराइट, सो द रीजन बिहाइंड इज कि भाई वहाँ पे क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है. ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका फोर्स जो हम लोग देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. तो नेगेटिव टर्मिनल्स में से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो सभी के सभी निकलकर पॉजिटिव में चले जाएंगे. ऑलराइट, नाउ देखेंगे, since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire, and this flow of electrons constitutes the electric current in the wire. So the reason behind is कि भाई वहाँ पे एक electric field generate हो गया है. ऑलराइट, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके बाहर निकलते हैं एंड थ्रू द वायर, थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट सबके सब एक उसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंड अप हो जाता है, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल उनको अट्रैक्ट करता है. राइट, सो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव. तो नेगेटिव में से सब अलाइन हो जाएंगे एंड दे विल मूव towards the positive. All right, so this is the direction of flow of electrons. All right, so this is the direction of flow of electrons. So यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया, जैसे ही हमने सेल को कनेक्ट किया तो क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से निकलकर रिपेल होकर, नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर निकलते हैं एंड दे मूव टू दी पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू दी वायर. ऑलराइट, अगेन एंड अगेन ये होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है. बट आप ये बोलेंगे कि अगर एक बार फोर्स लगा दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, देन व्हाट नेक्स्ट. उसके लिए हमको, क्योंकि हमको एक रेगुलर फ्लो ऑफ दी करंट चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ करते हैं, लाइक हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. ऑलराइट, सो दिस इज द सर्किट, और इसको हम जब तक ऑन रखेंगे तब तक ये बल्ब जलेगा, तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. राइट, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये बंद हो जाता है, बैटरी डेड हो सकती है. ठीक है, सो द रीजन बिहाइंड बैटरी डेड इज उसके सारे अंदर के केमिकल्स यूज्ड अप हो जाते हैं, तभी वो बैटरी डेड हो जाती है. राइट, सो वी कैन से जब तक इस बैटरी के अंदर केमिकल है तब तक तो ये करंट फ्लो करेगा. जैसे ही ये बैटरी के अंदर के केमिकल्स फिनिश हुए, डेड हुए, ये पूरा का पूरा डेड हो जाएगा एंड इट विल नॉट कंडक्ट एनी करंट. ठीक है, वो कुछ बनाएगा ही नहीं, करंट बनाएगा ही नहीं, तो इट विल नॉट फ्लो. राइट, एंड ये तो फिर भी छोटे सर्किट की बात है. अगर हम बात करें जो कि हमारे घर में बिजली आती है, तो उसके लिए हम कोई बड़ा सा सेल तो यूज़ नहीं कर रहे. राइट, वो तो फिर पावर स्टेशन में बनती है इलेक्ट्रिसिटी, तब हमारे घर पे आती है. तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहे. ऑलराइट, उसके लिए हम देखते हैं, it is due to the potential difference between two points that an electric current flows between them. There has to be a potential difference. ठीक है, अगर हम कंटिन्यूस फ्लो करना चाहते हैं तो हमें कंटिन्यूसली मेंटेन करना पड़ेगा वो डिफरेंस बिटवीन दी वायर्स और बिटवीन द टू पॉइंट्स इन विच वी वांट टू फ्लो द करंट. राइट, the simplest way to maintain a potential difference between two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. अगर हम चाहते हैं ऐसा कि कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहे तो डेफिनेट सी बात है वी शुड यूज अ सेल और अ बैटरी. ऑलराइट, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा अनलेस इसके केमिकल्स फिनिश हो जाए. राइट, तो तब तक तो ये मेंटेन रहेगा और कंटिन्यूसली करंट ऑफ फ्लो होता रहेगा. राइट,
Now let's move. Due to the chemical reaction going on inside the cell or a battery, a potential difference is maintained between its terminals, and this potential difference drives a current in the circuit. Right. So the basic difference between the potential, right, at the two ends of a conductor इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से करंट उसके अंदर फ्लो होता है. अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी तरह हट जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है. ऑलराइट, सो दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड एनी वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है. ऑलराइट, कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करें, और यही पोटेंशियल डिफरेंस भी बड़े बड़े पावर स्टेशन पे मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो यहाँ तक हमारे घर तक कंटिन्यूसली आ सके. ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ रियली जो करंट है हमारे घर तक पहुंचता है. नाउ अब हम क्या करते हैं, जो हमने करंट का फॉर्मूला सीखा है, जो हमने वी कैन से चार्ज का फॉर्मूला सीखा है, अब हम क्या करते हैं, उन सबको यूज करते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. ट्राई इट आउट, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो देखते हैं कि कितने बच्चे अपना क्वेश्चन सही कर पाए और कितने बच्चे नहीं कर पाए. ऑलराइट, देखेंगे सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन हमको गिवन होता है उसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन अगर हमको मिलता है, सबसे पहले तो वो लिख लो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. सो लेट्स राइट द गिवन इंफॉर्मेशन. हमको बोल रहा है इफ यू पास 500 मिली एम्पियर, और हमें यूनिट से पता चल जाता है कि भाई ये नंबर क्या है, क्या चीज शो कर रहा है. सो मिली एम्पियर से आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट. राइट, सो आई कैन राइट कि भाई अगर मुझे करंट बोला जाए तो इट शुड बी हाउ मच, 500 मिली एम्पियर. ऑलराइट, अब हम बोल रहे हैं इफ यू पास 500 मिली एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ बल्ब, एक बल्ब में से इतना करंट फ्लो हो रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू इट इन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से फ्लो होने चाहिए. ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी, हमको यहाँ पे करंट गिवन है 500 मिली एम्पियर, और हमको यहाँ पर टाइम गिवन है. ऑलराइट, एंड दैट टाइम इज 5 मिनट्स. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी, 5 मिनट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स. पहले तो हमें इनको SI में कन्वर्ट करना होगा. 500 मिली एम्पियर हमको बताया है, और मैंने आपको बताया था कि जो मिली होता है वो क्या होता है, 10 की पावर -3. 6 वुड बी फॉर दी माइक्रो एम्पियर. राइट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर. सो इट वुड गिव मी 0.5 एम्पियर. राइट, सो वी विल बी गेटिंग 0.5 एम्पियर. ऑलराइट, तो ये मैंने क्या किया है, SI यूनिट में इसको चेंज कर लिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम. टाइम को अगर मैं करती हूँ 5 इंटू 60 सेकेंड्स. वाई 5 इंटू 60? बिकॉज हम जानते हैं कि भाई 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 5 मिनट्स के अंदर 5 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे. दैट्स इट. राइट, तो 5 6 होता है 30, तो इट शुड बी 300 सेकेंड्स. तो अब मैंने टाइम को भी SI में कन्वर्ट कर लिया है, और हमारा जो करंट है उसको भी कन्वर्ट कर लिया है. नाउ लेट्स कैलकुलेट द चार्ज. जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q/T. तो अगर मुझे करंट चाहिए, चार्ज चाहिए, Q चाहिए, तो आई वुड बी राइटिंग I इंटू T. लेट मी राइट इट अगेन. ऑलराइट, इट शुड बी IT. ऑलराइट, अब हम इसका वैल्यूज रख देते हैं. दैट इज 0.5 इंटू 300. तो दैट शुड बी हाउ मच, 0.5 इंटू 3. ऑलराइट, इनसे जो है हमको मिलेगा 150 कूलम. ठीक है, हमको जो यूनिट अब मिलेगा चार्ज का वो भी क्या होगा, SI में होगा, तो आई वुड बी गेटिंग 150 कूलम्स. राइट, अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे
कि भाई यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं उसको हमको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को पता करने के लिए अब क्योंकि मेरे को क्यू पता चल गया है, मुझको टोटल चार्ज पता चल गया है, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकती हूँ अगर मुझे क्वांटाइजेशन याद है तो। ऑलराइट, मैंने आपको पहले भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया था व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। उस वक्त मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखकर बताया था Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E जो है वो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो वी कैन राइट हियर 150 C would be equal to n into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट। नाउ आप देख सकते हैं कि भाई ये जो E का वैल्यू है दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चलो अब हम इसे फटाफट से n के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट शुड बी 150 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब ये ऊपर चला जाएगा तो इट वुड बिकम प्लस 19, राइट। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू जाती है विद द नेगेटिव पावर, सो द पावर बिकम्स पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, सो वी वुड बी गेटिंग 15 अपॉन 16 इंटू नॉट 16 1.6 इंटू 10 की पावर 20। वाई इट इज 20? बिकॉज यू कैन सी हियर कि अगर मैं क्या करूँ, ये वाला एक जीरो, राइट, ये वाला एक जीरो और जो नीचे से 19 आ रहे हैं प्लस 1, तो इट वुड बिकम 20। दैट्स इट, आई हैव डन दिस ओनली, राइट। एंड वी कैन डेफिनेटली see this, right. All you have to do is to calculate 15 by 1 upon 6, all right, into 10 की power 20, and that would be the number of electrons present whenever this charge is flowing for the 5 minutes, all right. So you can definitely go through it. Now इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, all right. This is the solution for the question, and that's how you should deal with all the questions, all right. So it would be very much necessary for you all. All right, now let's move on to the another question. वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, all right, देखेंगे। Calculate the current supplied by a cell if the amount of charge passing through the cell in 2 minutes is 240 coulomb. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको सिर्फ क्या पता करना है, करंट पता करना है, एंड दैट्स इट, राइट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट से इसके अंदर जो है वो गिवन लिख लेते हैं, व्हाट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स हाउ यू शुड राइट द क्वेश्चंस, राइट। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने का यही एक तरीका होता है, राइट द प्रॉपर प्रोसीजर, 3 स्टेप प्रोसीजर। Number 1, write the given things. Number 2, write the you can say the formula. Number 3, you have to put the values inside the formula and then calculate it. So these are 3 steps if you want to write your question in a very much structured way, all right. And we are going to write the all the given values. So number 1 is charge, and charge is how much, 240 coulombs, right. Now we are going to write the time, and the time is t equals to 2 minutes, all right. So we are going to again convert these minutes into seconds. So I would be writing 2 into 60, that is 120 seconds, all right. So what we are going to do is to write the Q charge in the SI, T in the SI, that is 120, right. तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे and then put the values, 240 divided by 120, all right. So it would be 0 से 0 cancel out and it would be 2 ampere. So that's how, so easy, right. So that's how we are going to deal with all the questions. So these are the simplest questions you can ever have, all right. You can definitely note it down, it's important to you all, at least for the beginners, right.
Alright, so that's how you should deal with all the questions, all the numericals, right? And these are the very easy ones. So in this lecture, we have studied the electric potential difference and the reason behind the flow of the electric current. Alright, and that's the only reason, potential difference, right? There has to be a potential difference if we want a current to pass through a conductor. Alright, there has to be a potential difference. Alright, और जो हमारी अर्थ होती है ये बहुत 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 बड़ी कंडक्टर की तरह बिहेव करती है. ऑलराइट, इसके अंदर जितना चार्ज है वो सबका सब चला जाता है. ऑलराइट, ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से वी कैन से नॉट द कंडक्टर, वी कैन से द इंसुलेटर. वाई इंसुलेटर? बिकॉज सारा चार्ज ये अपने अंदर ले सकती है और इसके अंदर से हम चार्ज ले भी सकते हैं. राइट, जब हम कभी भी हमको जब क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल करना पड़ता है चीज़ों को, सो वी डू दैट. और आप देख सकते हैं जब कभी भी लाइटनिंग्स होती है, जब कभी भी थंडर आता है, राइट, तो उस वक्त भी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट होता है और वो सारा चार्ज थ्रू दी इन्वायरमेंट वो धरती के अंदर चला जाता है. राइट, एंड हमको कुछ भी फील नहीं होता दूर तक तो स्पेशली. राइट, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है दिस बिहेव्स एज अ वेरी मच, यू कैन से, जिसके अंदर से आप चार्ज डाल सको और चार्ज निकाल सको. सो इट बिहेव्स लाइक दिस. ऑलराइट, एंड दिस इज दी गुड थिंग, बिकॉज अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर अर्थ कंडक्टर होती तो हम लोग को भी करंट लगता रहता ऑलवेज. So this is a good thing, that is very much big insulator and it eats up all the charges, all the amount of charges, because lightning के अंदर बहुत ज़्यादा tremendous amount of charge create होता है. Alright, so this is the thing, this is the only starting, electric current is the only starting about the electromagnetism. तो जब starting होती है, यहाँ से ही starting होती है, the reason behind the flow of the electric current and all. तो अब आपका काम है, आपको क्या करना है, आपको चेक पॉइंट बी कंप्लीट करना है. ठीक है, दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे. ऑलराइट, एंड आपको जो इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उन सभी को कंप्लीट करना है. गो थ्रू द ऑल द एग्जांपल्स. सो दैट्स द होमवर्क फॉर यू ऑल टुडे. ऑलराइट, आई एम राइटिंग इट हियर. द होमवर्क इज चेक पॉइंट बी, that it's you have to complete this and आपको करने हैं all the illustrations and examples, all examples I should write it. ठीक है, तो आपको यही होमवर्क करना है, आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, आपको सारे चेक पॉइंट्स करने, चेक पॉइंट बी के सारे क्वेश्चंस करने हैं. दैट्स इज योर होमवर्क. एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे, एंड ऑल सच थिंग जो भी मैंने आपको इस पढ़ाया है इन दी 2-3 लेक्चर्स. ऑलराइट, ये सभी की सभी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी. ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है. ठीक है, कोई भी डिफरेंस अगर होता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and do not forget to subscribe it, to like it and to share it. Alright, study hard and let them all know that you are study from this channel. Alright, and do spread it out. So thank you so much for watching the video.